Today we discussed behavior of electric dipole in uniform electric field. So electric field के अंदर dipole कैसे behave करेगा उसके बारे में देखते हैं. So for this one consider an electric field which is going upward direction. So इसको ये हो जाएगा हमारे लिए electric field. So that is the uniform electric field which is going upward direction, and that is our electric dipole which is placed inside a uniform electric field. So that is our dipole. So let's see, this one is minus q charge and this one is plus q charge. Say this one is the midpoint of the electric dipole which makes an angle theta. So which makes an angle theta with the direction of electric field. And the separation between plus q charge and minus q charge is say 2a. So 2a is the distance between two charges. So because of the presence of electric field here, minus q charge and plus q charge experience force. तो सबसे पहले देखते हैं that is the direction of electric field. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा सोर्स चार्ज वाला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा. ओके, सो these are the सोर्स चार्ज पॉजिटिव बॉटम में होगा, ऊपर क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा. This one is the negative charge of the electric dipole, this one is the positive charge of the electric dipole. Due to the presence of electric field, these two charges experience force. So first of all, this negative charge experience force in downward direction, and the force acting on it we can say that F minus कितना हो जाएगा, that is equal to minus Q into E. Okay, so that is the electric force acting on the negative charge of the electric dipole. Same way this one is the plus Q charge, तो इसके ऊपर भी force लगेगा but वो लगेगा ऊपर की तरफ. तो यहाँ पे लिखेंगे हम F plus is nothing but that is the force acting on electric charge which is in upward direction. तो उसका वैल्यू कितना आएगा, सो ये हो जाएगा प्लस Q into E. So here these are the two forces F plus and F minus which are acting on the electric dipole. So what is the net force? So net force हो जाएगा F net that is equal to F plus plus F minus. Okay, the vector sum of electric forces acting on the each charge. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. सो वी कैन से दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0. नाउ द नेट फोर्स इज 0 मींस द डाइपोल इज इन लीनियर इक्विलिब्रियम. मतलब कि जो डाइपोल होगा वो क्या नहीं करेगा, वो लीनियर मोशन नहीं करेगा. सो डाइपोल कैन नॉट परफॉर्म लीनियर मोशन. रीजन इज दैट here the net force acting on the dipole is 0. Okay, now let's see the working line of the dipole. Here this one is the positive charge, उसका working line यहाँ पे आएगा. So that is the working line of dipole. This one is the negative charge, इसका force इस तरफ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा उसका working line. So here one thing is that these two forces are equal and opposite, plus their working line are different, means these two forces are non-collinear. So this non-collinear forces makes a couple. So यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कपल फॉर्म होगा. So here couple is formed because of the system. So यहाँ पे क्या होगा, दो चार्ज हो जाएंगे, दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा. These two forces are equal and opposite and they are non-collinear. So because of this condition here couple is formed, and because of the couple torque is act on the dipole. तो torque क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम टॉर्क लिख सकते हैं कि टॉर्क इज नथिंग बट दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस. ओके, दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट दैट इज द टॉर्क. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा, तो ये तो हमारे पास है, दैट इज इक्वल टू QE. नाउ लेट्स फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस. तो यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये एंगल कितना है, थीटा है. दिस इज द फर्स्ट चार्ज एंड दिस वन इज सेकंड चार्ज. तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. तो हमारे लिए ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, देखते हैं. सो दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए. सो फॉर दिस ट्राइंगल, ये अगर ट्राइंगल मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज आवर हाइपोटेनस. ये डिस्टेंस क्या होगा, ऑपोजिट साइड होगा, और ये कौन सा होगा, एडजेसेंट साइड होगा. तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस. सो फ्रॉम दिस ट्रिगोनोमेट्री वी कैन से दैट दिस डिस्टेंस मस्ट बी 2a into sin theta.
So 2a sin theta is nothing but that is the perpendicular distance between two forces. So using this condition here, our torque becomes, तो torque मिल जाएगा हमें, torque tau is equal to magnitude of any one force, तो magnitude हो जाएगा हमारे लिए q into e and perpendicular distance हो जाएगा that is equal to 2a sin theta. Now we can arrange these terms. So यहाँ पे मिलेगा 2a into q into e sin theta, 2a into q into e sin theta. Now what is 2a into q? 2a into q is nothing but that is the electric dipole moment. तो यहाँ पे हमें मिलेगा p into e sin theta. रीजन देख लेंगे, p is equal to होता है 2a into q, that is our electric dipole moment. So टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आएगा, p e sin theta जितना होगा. नाउ sin थीटा है तो यहाँ पे हमें टॉर्क मिल जाएगा यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट. सो वी आर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन P and E. So tau is nothing but that is equal to P cross E. The cross product between P and E gives torque acting on electric dipole. Now using this condition, using this equation, we can say that the direction of torque is perpendicular to the plane formed by vector P and vector E. तो वेक्टर P and E से जो प्लेन फॉर्म होगा उसके परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना, सॉरी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होना चाहिए. तो अगर वो देखना है तो कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज दिस वन इज दी चार्ज, यहाँ पे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा. सो दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. डाइपोल मोमेंट किस तरफ होता है, तो डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस डायरेक्शन में होगा. सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P. हियर एंगल बिटवीन देम इज थीटा. बराबर है. सो ये हो जाएगा वेक्टर P, ये हो जाएगा वेक्टर E. टॉर्क कैसा होगा, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय वेक्टर P and E. तो उसके लिए हम यूज करेंगे आइदर स्क्रू रूल, अदरवाइज राइट हैंड थंब रूल. अगर स्क्रू रूल यूज करते हैं तो स्क्रू को यहाँ पे रखेंगे. नाउ दिस स्क्रू इज प्लेस प्लेन परपेंडिकुलर टू P and E. Now here we are going to rotate the screw from P to E, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से हो रहा है, P to E जा रहा है. So as we rotate our screw from P to E, that means in anti-clockwise direction. So here to find the direction of torque, screw must be rotated in anti-clockwise direction. तो उसको anti-clockwise rotate करेंगे तो कहाँ मिलेगा, बाउट साइड मिलेगा. So ये डायरेक्शन होगा टॉर्क का. Okay, same way we can use right hand thumb rule to get the direction of torque tau. Okay, चलो another thing is that here torque जो होगा, टॉर्क लगेगा कितना, that is equal to P cross E. because of this torque dipole performs rotational motion. तो dipole क्या करेगा, rotational motion करेगा. So dipole performs rotational motion as torque act on the dipole. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हियर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. देयरफॉर डाइपोल कैन नॉट परफॉर्म लीनियर मोशन बट इट कैन परफॉर्म रोटेशनल मोशन बिकॉज ऑफ द नॉन जीरो टॉर्क. ओके, नाउ हियर एक और ये भी चीज याद रखनी है कि एज रोटेशनल अकर्स, दैट इज रोटेशन अकर्स, दिस एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन E and P that decreases. So dipole rotates in such a way that this angle decreases. Means as time passes, this dipole try to align in the direction of electric field. So again, what is the magnitude of torque? So torque हो जाएगा हमारे, torque tau is equal to vector P cross vector E, and its magnitude tau is equal to, we can say that Pe sin theta. Now we are getting total 3 conditions. तो उसके बारे में देखेंगे कि क्या होगा. So first of all, let's see these 3 things. Your first thing is that as theta is equal to 0 degree, means dipole moment and electric field both are parallel to each other. तो इस कंडीशन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, see this is the direction of electric field E and P is also parallel to electric field. So P is directed in the direction of E. तो ये हो जाएगा P. मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो होगा वो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. सो दिस वन इज माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे होगा प्लस क्यू चार्ज. ओके, सो नाउ इन दिस केस हियर डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री. सो इन दिस केस टॉर्क कितना हो जाएगा, सो यहाँ पे हमें टॉर्क मिलेगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू Pe साइन 0 डिग्री. साइन 0 डिग्री होता है 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा, सॉरी साइन 0 होता है 0, मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा 0.
So torque becomes zero when electric field and electric dipole moment are parallel to each other. यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पैरेलल है, मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा. नाउ दिस टू फोर्सेस आर कोलिनियर. यहाँ पे क्या होगा, दोनों फोर्सेस कोलिनियर हो जाएंगे, मतलब कि टॉर्क लगेगा नहीं. एंड ये जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, इसका जो फोर्स है इसी डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है. तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम मोस्ट स्टेबल पोजीशन. Most stable position of electric dipole, or we can say that this is the most equilibrium state of an electric dipole. So ध्यान रखना है कि when theta is equal to 0, the dipole is in most stable position. Reason here torque acting on the dipole is 0. तो सेकंड कंडीशन देखते हैं कि if theta is equal to 90 डिग्री, अगर एंगल बिटवीन P and E कैसा होगा, 90 डिग्री होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर पैरेलल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. सो नाउ P and E बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन दिस केस व्हाट इज द टॉर्क, तो टॉर्क हमें मिलेगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू P into E sin 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री होता है 1, सो आपका आंसर आएगा P into E. So in this case here torque becomes P into E, which is the maximum value. So maximum torque acts on the dipole when electric field and dipole moment are perpendicular to each other. Now let's see the third condition, when theta is equal to 180 degree. So theta is equal to 180 degree means electric field and dipole moment are anti-parallel to each other. तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हो जाएगा हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. P किस तरफ होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा. ओके, सो अगर सोर्स चार्ज के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए, यहाँ पे कैसा होना चाहिए, माइनस क्यू चार्ज होना है, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे सोर्स चार्ज के, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होंगे. नाउ एंगल इज 180 डिग्री. बीच टॉर्क के बारे में देखेंगे तो टॉर्क कितना मिलेगा, सो टॉर्क इज इक्वल टू P into E साइन 180 डिग्री. साइन 180 डिग्री होता है 0, मीन्स अगेन आपका टॉर्क कितना होगा, 0 होगा. सो इन एंटी पैरेलल कंडीशन ऑल्सो वी आर गेटिंग टोटल टॉर्क इज 0. सो डाइपोल के ऊपर टॉर्क नहीं लगेगा. बट लेट्स सी हियर, अगर आप फिगर में देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव सोर्स चार्ज होंगे, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्जन होगा. सेम वे दिस वन इज नेगेटिव चार्ज, दैट इज नेगेटिव सोर्स चार्ज, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होना चाहिए, रिपल्जन होना चाहिए. सो इन दिस केस total torque is 0, total force is 0, but dipole is in most unstable position, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रिपल्जन होगा. so this condition of an electric dipole is called most unstable position. most unstable position of electric dipole. तो आपको ध्यान रखना है कि most stable and in most unstable position total torque is 0. but what is most stable position, that is called when theta is equal to 0, and most unstable position when theta is equal to 180 degree. So remember this condition, when the torque becomes 0 as well as torque becomes maximum. चलो कुछ आगे देखते हैं. सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर. आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लेते हैं इट इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है एंड डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो डाइपोल है वो यहाँ पे आएगा, दैट मींस डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा है, पैरेलल है. नाउ इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा हमें नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज. ओके, नाउ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, मींस टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. टोटल टॉर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके, सो डाइपोल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. नाउ यहां से हम क्या करेंगे, डाइपोल को थोड़ा रोटेट करेंगे. सो एज वी गिव सम फोर्स टू दिस डाइपोल एंड डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू स्मॉल एंगल थीटा. तो डाइपोल को सपोज स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा.
तो डायपोल अभी यहाँ पे आ गया। ओके, ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज दी थीटा। ओके, सो नाउ यू आर गिविंग सम फोर्स एंड डायपोल इज रोटेटेड थ्रू स्मॉल एंगल थीटा। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। ओके, नाउ सी दी रोटेशन। हमने रोटेशन किस तरफ किया, रोटेशन यहाँ पे ऐसे होता है, दैट मीन्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो नाउ you are given the rotation to this dipole in anti clockwise direction। और जैसे उसको रिलीज करोगे तो क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। सो वंस वी रिलीज इट, व्हाट हैपन, टॉर्क एक्ट ऑन द डायपोल, टॉर्क एक्ट ऑन द डायपोल। तो टॉर्क कितना होगा, सो टॉर्क का मैग्नीट्यूड में मिलेगा, दैट इज इक्वल टू TE sin theta। okay, so once we release this dipole rotates because of the torque acting on the dipole, that is equal to TE sin theta। now what is the direction of torque, so because of this torque this dipole rotates in such a way that this angle theta decreases, means आपका रोटेशन जो है बिकॉज ऑफ द टॉर्क कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द डायपोल। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टॉर्क कैसे लगेगा, टॉर्क लगेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। तो यहाँ पे हम रखेंगे नेगेटिव साइन। So we can say that the torque acting on the dipole is nothing but that is equal to minus PE sin theta, minus PE sin theta। Now if this theta is very small, so if theta is very small, so we can say that sin theta is equal to theta। तो यहाँ पे हमें टॉर्क मिल जाएगा, that is equal to minus PE into theta। से इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो ये हो जाएगा टॉर्क। अभी हमने रोटेशन के अंदर, रोटेशनल मोशन के अंदर एक और फॉर्मूला देखा था फॉर टॉर्क। सो टॉर्क हम रोटेशन में देखते हैं कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ओके, वेयर आई इज नथिंग बट दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई को क्या बोलोगे, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एम डाइपोल। एंड अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा हमारे लिए एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड अल्फा इज नथिंग बट दैट इज दी एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सो tau is equal to I into alpha and alpha is called angular acceleration, I is the moment of inertia। बे एंगुलर एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, सो एंगुलर एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज d square theta by dt square, where theta is nothing but that is the angular displacement। ओके, तो थीटा क्या हो जाएगा, angular displacement। okay, so now we have two equation number 1 is for tau, second equation that is also for tau using rotational motion। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा I into alpha that is equal to minus TE into theta। so we can say that I and alpha is nothing but d square theta by dt square। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि d square theta by dt square इज इक्वल टू, आई को यहाँ पे नीचे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस PE डिवाइडेड बाय I इंटू थीटा। अदरवाइज वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज d square theta by dt square plus PE divided by I into theta, that is equal to 0। so this is the equation, or this is the second order differential equation, okay, for SHM। ओके, तो SHM के लिए हमने एक इक्वेशन देखा था कि डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पे जो y होगा वो वेरिएबल होगा, एंड दिस y इज नथिंग बट दैट इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सो दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ SHM। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वंस दिस डायपोल इज रिलीज्ड by giving a small rotation it performs simple harmonic motion। तो डायपोल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, बराबर है। अभी उसको हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। सो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू PE डिवाइडेड बाय I। ओके, ओमेगा इज नथिंग बट दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां से हमें मिलेगा, से एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ PE डिवाइडेड बाय I। सो दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल which who is performing simple harmonic motion।
ना ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो यहाँ से f कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमें f मिलेगा दैट इज 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ PE divided by I. So PE divided by I. So that is the formula of frequency. So frequency of the dipole is nothing but that is equal to 1/2π square root of PE divided by I. Once again omega is equal to 2π divided by t बोल सकते हैं, अदरवाइज f is equal to 1/t. तो यहाँ से आपको पीरियोडिक टाइम भी मिलेगा. सो पीरियोडिक टाइम ऑफ द डाइपोल इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ I divided by square root of I divided by PE. सो ये हो जाएगा उसका पीरियोडिक टाइम. सो these are the omega, f and t for a dipole which is rotated through a small angle theta in a uniform electric field. Next आएगा work done on electric dipole. Electric dipole in uniform electric field. So now here we know that as dipole is rotated through small angle theta and released it, so it performs uniform circular motion. तो यहाँ पे देखेंगे कि डाइपोल को हमने थोड़ा सा दैट मीन्स थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड किया है थ्रू स्मॉल एंगल थीटा. सो सबसे पहले टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क हो जाएगा हमारे लिए दैट इज इक्वल टू PE sin थीटा. हियर वी टेक ओनली मैग्नीट्यूड. ओके, सो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा रोटेशनल वर्क डन. सो वर्क डन in rotating a dipole through small angle theta. Work done in rotating a dipole through small angle d theta. सो हमारे लिए मिलेगा स्मॉल वर्क डन. सो dw इज इक्वल टू क्या आएगा, टाउ इंटू d theta. What is tau? Tau is nothing but that is equal to PE sin theta d theta. This one is the small work done. So what is the total work done? So total work done is nothing but, so total work done W is nothing but that is the integration of dW. dW कहाँ से होगा, तो यहाँ पे हमने लिया था कि इनिशियली डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो यहाँ पे θ1 रखेंगे, यहाँ पे θ2 कर देंगे. सो θ1 हमारे लिए क्या हो जाएगा, θ1 इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन मींस 0 डिग्री. तो वहाँ से रोटेशन लेंगे किसी भी आर्बिट्ररी एंगल θ के ऊपर. ओके, सो नाउ डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू मोस्ट स्टेबल पोजीशन दैट मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एनी आर्बिट्ररी एंगल θ. सो उसके लिए वर्क डन हमें क्या मिलेगा, सो वर्क डन इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 डिग्री टू θ PE sin theta d theta. PE sin theta d theta. Here PE is constant, so we can say that is P into E integration 0 degree to theta sin theta d theta. तो वर्क डन हमें मिलेगा W is equal to P into E sin theta का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos theta. So this one is minus cos theta starting from 0 degree to angle theta. Now here let's put the values of upper limit and lower limit. तो सबसे पहले upper limit आएगा, so that is equal to P into E. So theta is replaced with the theta, that is the upper limit. तो यहाँ पे आपको मिलेगा cos theta. Now this one is minus, so minus minus plus हो जाएगा. And theta is replaced with the lower limit which is 0 degree. तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0 degree. So that is equal to P into E. ये हो जाएगा minus cos theta and cos 0 that is equal to 1. So we can say that minus cos theta plus 1. So work done on a dipole in rotation through most stable position to any particular angle theta. W हो जाएगा P into E. This one is 1 minus cos theta. Okay, so that is the formula of work done. ये आपको याद रखना है. ओके, सो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, PE 1 माइनस cos थीटा. अगर एग्जाम्पल देखने जाए तो एक बार एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव में पूछा गया था कि व्हाट इज द वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम मोस्ट स्टेबल पोजीशन टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन. तो अगर हम डाइपोल को मोस्ट स्टेबल पोजीशन
मतलब कि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री से मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन से थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री तक हम उसको रोटेट करेंगे तो वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा 0 to 180 डिग्री, मीन्स ये तो 1 ही रहेगा। कॉस थीटा थीटा की वैल्यू 180 रखेंगे तो W हमें मिलेगा W इज इक्वल टू P इंटू ई, दैट इज 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री होता है -1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो हमें आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स P इंटू ई। सो दैट इज दी वर्क डन to rotate electric dipole from most stable position to most unstable position. This is the formula of work done to rotate a dipole from any particular angle, from most stable position to any particular angle theta. ये उसका फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप डायरेक्टली उसका कैलकुलेशन यहाँ से ऐसे कर सकते हो। Whenever you have uniform electric field, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो रोटेशन हो सकता है। सो वी कैन से दैट टोटल फोर्स एफ नेट इज ऑलवेज जीरो, ये हमेशा जीरो होता है। ओके, ये हमेशा जीरो होता है, मतलब कि वो लीनियर मोशन जो है वो कभी भी नहीं करेगा। ओके, नाउ टॉर्क कैसा हो सकता है, तो टॉर्क मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो। ओके, तो जीरो कब होगा, तो जीरो कब होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, इन दोनों में टॉर्क कैसा होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन के अंदर डायपोल जो है वो रोटेशन भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे रोटेशन जो है वो नहीं होगा, कैसे एंगल पे 0 डिग्री और 180 डिग्री पे। ओके, एक्सेप्ट कोई भी एंगल होगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा, नॉन जीरो होगा, मतलब कि उस टाइम के अंदर रोटेशन क्या होगा, होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन एवर द डायपोल इज प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको लीनियर मोशन कभी भी नहीं होगा, अदरवाइज फोर्स जो है हमेशा जीरो रहेगा, बट टॉर्क जो है वो हमेशा जीरो नहीं रहेगा। ओके, इट मे बी और मे नॉट बी जीरो डिपेंडिंग ऑन दी position of electric field and electric dipole moment. So that is the behavior of electric dipole in a uniform electric field. Now let's discuss what is the behavior of electric dipole in a non-uniform electric field. So अभी dipole को non-uniform electric field में रखोगे तो क्या होगा, so let's discuss the behavior of dipole in non-uniform electric field. Now in non-uniform electric field means at every point the magnitude of electric field changes. तो electric field जो है अभी वो क्या करेगा, वेरी करेगा। So let us consider that is the non-uniform electric field। यहाँ पे हम देख सकते हैं, so that is the non-uniform electric field। यहाँ पे distance between two field lines कम है, यहाँ पे distance between two field lines ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पे electric field कैसा होगा, comparatively strong होगा, यहाँ पे electric field जो है वो comparatively weak होगा। So now when the electric dipole is placed in a non-uniform electric field, तो dipole को यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा, so let us consider that this one is plus q charge, this one is minus q charge, A position, this one is B position। सो यहाँ पे चार्ज है, दिस डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके दोनों चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, तो एफ ए दैट मीन्स एफ माइनस कितना हो जाएगा, तो एफ माइनस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, एंड एफ प्लस कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई। ओके, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, सो एफ माइनस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई प्लस, एंड एफ प्लस इज इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई माइनस। अभी देखते हैं कि दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर डिफरेंट, मतलब कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग एफ नेट। तो आपको नेट फोर्स जो होगा वो कैसा मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा। ओके, सो इन दिस कंडीशन हियर योर एफ नेट इज नॉन जीरो, मीन्स डायपोल कैन परफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, डायपोल परफॉर्म लीनियर मोशन। सो डायपोल के ऊपर भी फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, वो लीनियर मोशन करेगा। सो आपको ध्यान रखना है कि whenever the dipole is placed inside a non-uniform electric field, here net force act on the dipole and because of this net force it performs linear motion. Now what about the torque? तो टॉर्क तो क्या होगा, तो हमें पता है कि टॉर्क कब लगेगा, when torque is equal to 0, when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। इस कंडीशन के अंदर टॉर्क हो जाएगा जीरो, बाकी की कंडीशन में टॉर्क कितना हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन भी होगा।
इसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन भी होगा। सो ध्यान रखना है कि इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल परफॉर्म्स लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन ड्यू टू द गिवन कंडीशन। इसका एग्जांपल देखेंगे। सो व्हेन वी कॉम्ब आवर ड्राई हेयर, सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉम्ब टू दी हेयर। मतलब कि कॉम्ब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज हियर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप ऑन दी कॉम्ब। ओके, सो इफ स्मॉल डाइपोल समथिंग लाइक अ पेपर पीस, तो पेपर पीस जो होगा छोटा सा, इट बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब भी उसको कॉम्ब के नज़दीक लेके जाएंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। सो नेट फोर्स जो होगा वो नॉन जीरो होगा एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग हियर दिस पेपर पीस इज डिस्प्लेस्ड और अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी कॉम्ब। सो ये जो होगा ये बिहेवियर होगा बिकॉज ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So that is the end of behavior of electric dipole in uniform as well as non-uniform electric field. The DPP of electric dipole is uploaded in Google Classroom. You just referred it.